हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम 10th क्लास के लिए सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया था हमारा। इसमें हमने क्या किया है कि जो बोर्ड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, उनके रिलेटेड सिंपल उनके इक्वलेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो हमने क्या किया है कि चैप्टर वाइज बोर्ड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग, वी आर सॉल्विंग। तो आई एम गिविंग टू यू द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। टुडे इज द 4th lecture. In 3 lectures I have given chapter 1, chapter 2 and chapter 3 also started in the 3rd lecture. Today also chapter 3 in 4th lecture forward continuously. So in that question, important questions on the basis of CBSE board exam 2025 from chapter 3 in 10th class. Okay, find the values of k. Question 1 for today. Find the values of k so that the pair of linear equations 2kx minus 3y plus 8 equal to 0 and दूसरी इक्वेशन k plus 1 into x minus 5y minus 3 equal to 0 has unique solution. So for the unique solution for this system of linear equation we have to find the value of k. Okay बेटा, clear question? तो unique solution की condition we have to apply. तो what is the condition for unique solution? You know what is the condition? a1 upon a2, we know this condition is not equal b1 upon b2. This condition for we should write because given here has unique solution. So for unique solution we know that. Okay beta, we should give the hint if 2 mark question. If in 1 marks तो direct we can do, option will be there. तो for unique solution we know that, ठीक है, कि this condition for unique solution. तो apply this and put here value. What is a1? a1 is 2k. I am putting direct upon a2 is coefficient of x in second equation k plus 1. ठीक है बेटा, क्लियर? is not equal b1 value in first equation coefficient of y, it is here minus 3 upon b2 coefficient of y in second equation minus 5. Okay beta, then cross multiply, simplify. Okay, then minus, this implies simplify, cross multiply, minus 10k is not equal, multiply by minus 3 in k plus 1 minus 3k and minus 3. Simplify, then k one side minus 10 and this plus 3 this side, to minus 7. Okay, is not equal minus 3. Okay beta, then k is not equal, minus minus sign cancel, 3 upon 7. Okay beta, then accept these value, k is not equal to 3 upon 7, other all real numbers are possible values. तो बहुत सारी एक
3/7 को छोड़कर, एक्सेप्ट 3/7, अदर ऑल रियल नंबर आर द वैल्यूज ऑफ k, so that this linear equation has the unique solution. Done. So this is your option. If option question, then you can search this. Done. Clear this? So like this question, very important question. Okay. Now next question, simple. Next question. Next question. Okay. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे, दैट सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - 7y + 8 = 0, -3x + 5y - 3 = 0, and hence find the value of p if 3x + 2py - 5 = 0. तो फर्स्ट सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एनी मेथड. तो वी कैन सॉल्व बाय एनी मेथड. यू कैन चेक here 2x, here 3x. तो मल्टीप्लाई बाय 3 to this, मल्टीप्लाई बाय 2 to the second. ओके, तो यू कैन राइट रीराइट. ओके, रीराइट ओके बेटा, रीराइट द इक्वेशंस. ओके, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 8 जा, and take that side, 3 8 जा 24, and this plus to -24. Okay, equations such that second equation multiply by 2, 2 3 जा 6. I am using the elimination method. Okay, making the any one variable coefficients equal. मैं x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना रहा हूँ. यहाँ -3 था, यहाँ 2 था, तो 3. ओके बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 6 पर ये इक्वल होते हैं. यानी 2 नंबर्स आर इक्वल ऑन देयर एलसीएम ऑलवेज. एनी 2 नंबर इफ यू वांट टू मेक द इक्वल, देन टेक द एलसीएम ऑफ बोथ. तो एलसीएम इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है उन दोनों का, सबसे छोटा मल्टीपल, तो वहाँ वो इक्वल हो जाएंगे. तो इक्वलेंट में हम इस तरह से कर लेते हैं. ओके, तो इक्वल बनाने के लिए दिस मेथड. आफ्टर दैट here multiply by 2 5 जा 10 plus 10y. ओके, बी केयरफुल दिस, एंड इक्वल. ये -3 2 जा 6, -6 है तो उधर +6 हो गया. ओके बेटा, एंड देन नाउ व्हाट यू विल डू अकॉर्डिंग टू देयर साइन. साइन यहाँ कैसे, प्लस माइनस. कैसे साइन है, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव. ऑलरेडी वो अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे बाय एडिंग. तो एडिंग करेंगे. अगर सेम साइन होंगे तो बाय सब्ट्रैक्टिंग चेंज द साइन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ ईच टर्म एंड देन कैंसिल. ओके, बट हेयर एडिंग, ऐड. ओके, ऐड किया तो क्या बना, ये कैंसिल हो गए. तो माइनस के 21 प्लस के 10 सब्ट्रैक्ट हो गए, अपोजिट साइन है, तो देन ये बन गया 11 माइनस के. ठीक है बेटा, और इधर कितना बना ये देखो आप, -24 एंड प्लस के 6 सब्ट्रैक्ट हो गए. ओके, तो 18, तो -18. क्लियर बेटा. देन y value implies that. ओके, तो y वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो गया. 18 डिवाइड बाई 11. डन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y.
तो आफ्टर टेकिंग दिस वैल्यू y फाइंड द x। तो पुटिंग दिस वैल्यू यूजिंग in any one equation, so I am putting in any one in first। तो फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ मैं, क्या बना, दिस इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 7 इंटू वाई, वाई इज 18/11, y value I put here, and plus 8 means equal to -8. Done. Now simplify, then 2x is equal to, this negative number will go positive that side, तो -8 and plus ये multiply 18 into 7, okay, 126, ओके एंड ये नेगेटिव था उधर जाकर पॉजिटिव बन गया, अपॉन 11 एलसीएम एंड सिंप्लीफाई एंड डिवाइड बाय 2, देन x वैल्यू विल बी इक्वल टू, फर्स्ट सिंप्लीफाई एलसीएम एंड डिवाइड बाय 2, यानी 2 इंटू 11, एलसीएम इज 11, तो 11 8 जा 88, सिंप्लीफाई, ओके बेटा, एंड प्लस 126। नाउ सिंप्लीफाई, देन दिस विल बी -88 and 126 पॉजिटिव, देन सब्ट्रैक्ट 16 - 8 8, देन 11 - 8 3, then positive this upon 2 into 11, then 2 से simplify, 2 1 जा 2, 19, 19 2 जा 38, then 19 upon 11, this is the value of x, okay। तो दिस वैल्यू ऑफ x एंड दिस वैल्यू ऑफ y आंसर, एंड फाइंड द p, देन पुटिंग दिस वैल्यू 3x, x वैल्यू इज 19/11, तो 3 इंटू 19/11, 3x प्लस 2 इंटू पी वाई, तो 2py, y वैल्यू इज 18/11 इंटू 18/11, ओके बेटा, मल्टीप्लाई दिस 2py एंड -5 इक्वल टू 0, देन इक्वल टू -5 है तो देन +5, ओके। हमने क्या यूज किया यहाँ पर, यूज x and y, use x y in इक्वेशन 3, हमने 3 में इस इक्वेशन 3 इसमें वैल्यू भर दिया, यूज कर दिया है, तो देन सिंप्लीफाई, देन ये उधर जाएगा, देन 5 माइनस होगा 19 थी, 57 upon 11, this number, okay, and then 18 to जा 36/11, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ 36/11 विद p, तो ये वहाँ 11/36 हो जाएगा, इंटू 11/36, this value will be of p, then simplify, be careful, एल्शियम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे फिर 11 कैंसिल होगा, ठीक है बेटा।
11 एलसीएम, 11 5 जा 55, 55 माइनस 57 -2, ओके बेटा, क्लियर, एंड इनटू 11 अपॉन 36, देन सिंप्लीफाई, 11 11 कैंसिल, 2 से कैंसिल 18, then this is equal to -1 upon 18. This is the value of P. Okay beta, so hence this our answer value of P, and these are the answer values of X and Y. So like this we can do. Okay, next question. Yes, now this question number 3. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of the distance covered. यानी 2 types charges हैं, one is fixed charge, other distance covered by the person. Okay, for a distance of 15 किलोमीटर, अगर कोई एक 15 किलोमीटर के लिए कार को टैक्सी को लेता है, द चार्ज पेड 155, तो 155 चार्ज पे करता है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹212. व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर? तो 2 टाइप के चार्ज हैं, वन चार्ज इज फिक्स्ड चार्ज, अदर चार्ज पर किलोमीटर चार्ज. तो लेट इन दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन, लेट फिक्स्ड चार्ज ₹X, 2 टाइप के चार्ज हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज, ओके बेटा, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹X, एंड दूसरा पर किलोमीटर चार्ज. ठीक है बेटा, वो पर किलोमीटर चार्ज, जर्नी वो 1 किलोमीटर करता है तो चार्ज कितना, पर किलोमीटर चार्ज ₹Y. ये हमने लेट कर लिया. ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 15 किलोमीटर जर्नी करता है एक पर्सन तो 155 रुपीज़ चार्ज करता है, तो टुगेदर विद द पर किलोमीटर एंड फिक्स्ड, तो फिक्स्ड चार्ज आपका क्या है, X है, और ऐड करेंगे इसमें दूसरा क्या है, पर किलोमीटर Y है, और कितने किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर, तो 15Y हो गया बेटा ये चार्ज. ओके, तो टोटल उसने कितना पे किया है, ₹155, दिस उसने पे किया है. ओके, चलो इक्वेशन 1 बन गई. सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है कि फॉर ए जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर, फॉर ए जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹212. तो फॉर 20 किलोमीटर जर्नी व्हाट विल बी द चार्ज, X इज द फिक्स्ड चार्ज, एंड 20 किलोमीटर का चार्ज पर किलोमीटर Y, तो 20Y रुपीज़, दैट इज इक्वल टू कितना पे किया उसने, 212, ये उसने पे किया है. ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई. ओके, अब नाउ व्हाट इज क्वेश्चन, नाउ सिंप्लीफाई, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने. ओके, तो क्या बन गया, एक्स कैंसिल हो गया, तो ये बन गया -5y प्लस के 15 माइनस के 20 इज इक्वल टू 212 माइनस 155, 12 माइनस 5 7, देन 0,
then 10, 10 minus 5, 5, then 1 minus 1, 0, 57, and then it is negative. So y equal to negative negative cancel, 57 अपॉन 5. ओके, तो कितना आया ये, 5 से डिवाइड किया तो क्या बना, 5 1 जा 5, then 5 1 जा 5, then 2 रिमाइंडर 20, 5 4 जा 20, तो 11 रुपीज़ 40 पैसा, ये इतना आपका y बन गया. ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो सो फ्रॉम फर्स्ट किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हमने y पुट कर दिया तो क्या बना, x प्लस 15 इंटू वाई, वाई इज 57 अपॉन 5. 15 into y is equal to 155. ओके, देन 5 से सिंप्लीफाई हो गया, 5 3 जा 15, तो x इज इक्वल टू 155 and this number will go that side minus, and this number is 5 3 जा 15, तो 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 2 17. ओके, क्लियर दिस, देन सिंप्लीफाई. तो ये हो गया आपका कितना, नेगेटिव, x is negative. No, it is not possible. This question figures wrong. Okay. 15 into y. 15 into y. Y is 57 upon 5. तो 5 3 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 and 2 17. एंड ये प्लस था यहाँ पर, उधर जाकर माइनस हो जाएगा. ओके, 155 माइनस 171, तो ये तो नेगेटिव हो गया. इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो इट इज़ रॉन्ग हेयर, क्वेश्चन इज रॉन्ग. तो वी हैव टू चेंज द फिगर, वी हैव टू चेंज द फिगर्स. ओके, तो विन 155 को थोड़ा सा बढ़ा लें इसको, या इसको कम कर लें. ठीक है, 155 को बढ़ा लें या इसको कम कर लें. ठीक है, देन इट विल कम, बिकॉज इट इज नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. क्यों, नेगेटिव चार्ज रुपीज, नॉट पॉसिबल. सो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग हेयर, सम फिगर्स वी शुड चेंज. ओके, सम फिगर्स रॉन्ग, वी शुड चेंज. इसको 200 कर लेते हैं हम, 200. देन दिस डिफरेंस व्हाट विल कम, यू कैन चेंज. ओके, तो नाउ दिस फिगर चेंज, व्हाट विल कम, दिस विल कम हेयर, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस, या सब्ट्रैक्ट किया 200 155 देन 45. ओके, देन y इक्वल 9. ठीक है. नाउ y को यहाँ पुट करें तो कितना बनता है, x प्लस 15 इंटू 9, 135, 15 9 जा 135 इज इक्वल टू 155. ओके, देन x इज इक्वल टू,
ओके 155 माइनस 135, 35 एंड 55 20 माइनस हो गया जाके देन 20, तो यह फिक्स्ड चार्ज 20 एंड पर किलोमीटर चार्ज ₹9। तो आंसर फिक्स्ड चार्ज, so we should write, so fixed charge कितना हुआ, x माना था हमने, वो कितना बन गया ₹x मीन्स 20, फिक्स्ड चार्ज हो गया ₹20, ओके। एंड पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज ये बन गया आपका y माना हमने, y की वैल्यू कितनी आई, ₹9। सो दिस इज द आंसर। This number I change, which one number I change? This one 200 I taken. Thus we should write this 200. Okay beta? This 200. Then okay, then find the charge for 30 kilometer. Now for 30 kilometer charge will be equal to x is fixed plus 30y. Put value, x is your fixed charge, your ₹20 plus 30 into y 9, तो 9 3 जा 27, ओके 270, तो 20 प्लस 270 देन 290, तो व्हाट इज द दिस चार्ज 30 किलोमीटर चार्ज ₹290 आंसर। ओके बेटा, तो लाइक दिस क्वेश्चन वी कैन डू, ओके क्लियर। नाउ one question more. Hello, next question for the ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. Okay beta, income and expenditure ratio given, but what given? If each of them manages to save ₹2,000, every person managed to save ₹2,000 each, every person per month. Find their monthly income. तो मंथली इनकम उनकी लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेशो। तो लेट monthly income, let monthly income of both इक्वल रुपीज़, इक्वल इनकम है रुपीज़ में, ₹9x and 9x and 7x. Why? Because ratio given 9:7.
ठीक है बेटा, रुपीज़ 9x एंड रुपीज़ 7x। तो डिवाइड करोगे तो 9:7 है। ठीक है, इनकम अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशो टेक x विद दैट एंड एक्सपेंडिचर रेशो टेक y। ओके, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, जब रेशो गिवन होता है एंड मंथली इनकम ऑफ बोथ एंड मंथली एक्सपेंडिचर रेशो, एक्सपेंडिचर। ओके बेटा, एक्सपेंडिचर expenditure of both rupees according to the ratio। तो रुपीज़ 4y here 4y एंड रेशो 3 है तो 3y। डिवाइड करोगे रेशो निकालो तो y कैंसिल हो जाएगा, देन 4:3 बनेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये लेट किया है। ठीक है बेटा, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। नाउ इक्वेशन बन जाएगी, ईच पर्सन मैनेज टू सेव, तो सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9x, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन 4y, तो -4y इज इक्वल टू गिवन दिस के 2000 रुपीज़ सेविंग हो गई उसकी। ओके, एंड सेकेंड पर्सन इनकम 7x and expenditure of second person 3y minus 3y simple is equal to 2000। दोनों ने मैनेज किया इस तरह से कि 2000 बचते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर फर्स्ट पर्सन इक्वेशन 1, फॉर सेकेंड पर्सन इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ व्हाट यू हैव टू सोल्व। तो हेयर 4, हेयर 3, हेयर 9, हेयर 7, तो यू कैन मेक एनी वन। तो मल्टीप्लाई बाई 3, आई एम डिलीटिंग दैट y, तो आई एम मेकिंग इक्वल y, तो हेयर मल्टीप्लाई बाई 4। देन व्हाट विल कम, reduce these equation in the new form। What are the new form? First equation multiply by 3, 3 9 जा 27 to make the equal coefficient of y। ठीक है, then 3 4 जा 12 minus 12y and 3 2 जा 6, 6000। equation 1 reduce into new form। okay, now equation 2 multiply by 4, तो 4 7 जा 28, x 4 3 जा 12, multiply by 4 2 जा 8, this is equation number 2। okay बेटा, clear। now elimination method, here दोनों नेगेटिव साइन है तो देन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन है देन सब्ट्रैक्ट। एलिमिनेशन मेथड, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस एंड दिस माइनस,
तो ये क्या हो गया बेटा, -12y + 12y कैंसिल, -x बन गया -1x इज इक्वल टू 8000 एंड 6000 देन 2000, तो -2000। तो माइनस माइनस कैंसिल, देन x इज इक्वल टू 2000। फाइंड y आल्सो बिकॉज वी हैव टू फाइंड मंथली इनकम, एंड इनकम फाइंड करनी तो x की ज़रूरत है, y की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सपेंडिचर हमें फाइंड नहीं करना है, तो x से फाइंड हो जाएगी दोनों की इनकम। सो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, ओके बेटा, कितनी है 9x फर्स्ट पर्सन इक्वल 9x इक्वल 9 इंटू x मीन्स 2000 इंटू 2000, तो 9 2 जा 18,000, तो रुपीज़ 18,000 इनकम है फर्स्ट पर्सन की, ओके बेटा। आंसर सेकंड पर्सन इनकम ऑफ सेकंड, 2 पर्सन थे, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल टू कितना है 7x, 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2000 देन 14,000, तो रुपीज़ 7 2 जा 14,000, तो मीन्स 18,000 and 14,000 are the income of the both person. Answer. Okay, monthly income 18,000 and 14,000. Done. So like this we can do. Okay, like, share and subscribe the channel and send the videos to the maximum contact and guide them. They must watch, like, share and subscribe the channel. एंड नॉट फॉरगेट टू राइट द कॉमेंट इन कॉमेंट बॉक्स के वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर भेजें। थैंक यू।